Okay, so in the last class, I discussed about some concepts of economics like what is demand, what is supply, and how does demand and supply affect the prices of goods. Then we discussed about certain kind of market structure like monopolist, oligopoly, and monopoly and all. Then I discussed about normal goods, inferior, substitute, and complementary goods. Okay. So our next topic is business cycle components. So what happens in a business? So there is never a constant phase in the business structure. So there may be the rising part, then certain constant, then fall down, and at some time they can also have the like contraction part. So we will discuss about all the components of a business cycle. So first is sorry. So first is expansion. So what happens in a business कि जब आप कोई business start कर रहे हो तो like it is not actually happen ना कि जैसे ही आपने business start किया और तभी से आपके business में क्या होगी मतलब बिजनेस एक पीक पे पहुंच गया. इट्स नॉट ना कि सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यू हैव स्टार्टेड विद सर्टेन लेवल, देन जैसे जैसे ग्रोथ होगी आपकी मार्केट में, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, आपका मार्केट साइज बढ़ेगा, आपकी लाइक सेल्स इंक्रीज होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, देन देयर विल बी अ टाइम कि जब ग्रोथ स्टॉप हो गई एंड देयर मे बी अ टाइम कि जब क्या होनी स्टार्ट हो गई, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई. बिकॉज सेम किसी भी बिजनेस में क्या हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन स्टेज का मतलब कि जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इंक्रीज हो रही है, reflect increase in various economic factor as well, like during the expansion stage economic activity is rising characteristic size by increasing GDP कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है जिससे जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बिकॉज जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो यू हैव टू प्रोड्यूस मोर ना, कि जिसके लिए आपको क्या है, लेबर भी ज्यादा चाहिए, तो डेट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है. consumer confidence because your product demand is increasing, and also you need to have certain investment also because maybe आपको अपना फैक्ट्री साइज बड़ा करना पड़ रहा है due to the increased production. So this is the expansion stage. Business expand their production and hire more workers, leading to higher income and spending. So what are the indicators like rising GDP? अगर GDP increase हो रही है, unemployment rate घट रही है, increase industrial production, higher consumer spending because consumer की demand बढ़ रही है means they are more comfortable in spending their money to purchase the product, and rising stock market indices. Next, there may be a stage reach when you like reach the highest point of economic activity कि जब आपकी business की एक peak आ चुकी है means highest amount कि कितना आपने produce कर पाया. Before a downturn, during this phase, what happened? The economy is operating at full capacity means you are using all your capacity to produce like at maximum what you can produce, and growth rates slow down as the economy reach its maximum output कि जितना बेच सकते थे बेच दिया मीन्स अब आपकी क्या है, डिप्रेशन स्टेज स्टार्ट होने वाली है आपके बिजनेस की. सो व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट कि बिजनेस आपका पीक पे पहुंच गए, हायर जीडीपी लेवल, लो अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज जितना प्रोड्यूस कर सकते थे आप उतना उस कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो डेट मीन्स कि अब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी लो होगी बिकॉज ज्यादा से ज्यादा आपने वर्कर्स हायर कर रखे हैं. हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड पोटेंशियली राइजिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू हाई डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज.
कॉन्ट्रेक्शन स्टेज, अब जितना मैक्सिमम कर सकते थे कर लिया एक बिजनेस की, देन कॉन्ट्रेक्शन स्टेज बेसिकली स्टार्ट हो जाती है, मींस जहां पर उसके प्रोडक्ट की डिमांड अब डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। तो कॉन्ट्रेक्शन इज मार्क्ड बाय अ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी is now going to decrease, unemployment rises, बिकॉज जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड घट रही है आप क्या करते हो, वर्कर्स को भी तो कम हायर करोगे, तो जो एक्सेस है you lay off them. Consumer spending and business investment fall, and overall economic confidence wins. Falling GDP, rising unemployment rate, decreasing industrial production, lower consumer spending, declining stock market indices. These all are indicators that a business is reached in its contraction stage. Next, there may be a time then the business comes into the trough. Trough is the lowest point of activity. कि जब आप अपनी lowest stage पे पहुंच चुके हो, it marks the end of recession and the beginning of the recovery phase. So what can happen? So it is basically the end of recession कि जितना low हो सकते थे उतना low level पे आपका business आ चुका है. So what can happen? या तो business अब shut down हो जाएगा या this is the mark of recovery phase कि अब यहाँ से या तो आपकी recovery शुरू होगी. Economic activities at its lowest, but it start to stabilize and show sign of improvement. So this is the stage कि जब आपका business lowest point पे पहुंच चुका है और यहाँ से अब उसकी मे बी रिकवरी होनी start हो जाए. So what are the indicators? Now lowest GDP level, high unemployment, low consumer and business confidence, stable or slowly increasing stock market indices. Okay, clear? So these are basically the life cycle of a business. So it is very common कि business जब भी start होगा तो first of all it start to uh, grow up, then there is the maximum peak reached, then it goes to slow down and reach its lowest phase. Yes, understood. Okay, so next are economic indicators. So basically indicators means what? कि indicators which can indicate something. Economic means कि जो economic related information provide कर रहे हैं, like they can give the information about an economic performance and future direction of the economy. They are classified into three types. So economic indicators means which can indicate about something like economic performance or predict the future performance of our business. So first of all is leading indicator, then we have coincident indicator and then lagging indicators. So leading indicators are those indicators which are like predict future economic activity कि जो होने से पहले ही जो factors indicate कर रहे हैं कि what is going to happen in the future. They change before the economy start to follow a particular pattern. So these are indicators which usually change before the economy as a whole changes. इकोनॉमी चेंज होने से पहले ही जो फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, इट मींस दे आर इंडिकेटर्स कि देयर इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की आपके स्टॉक प्राइसेस में चेंज आ गया तो डेट कैन इंडिकेट अ फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक राइजिंग स्टॉक प्राइसेस जनरली रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ कि अगर कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डेट मीन्स कि कंपनी कल को अच्छा ग्रो कर पाएगी. बट अगर कंपनी के शेयर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं डेट मीन्स देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन द कंपनी एंड माइट मे बी द कंपनी इज गोइंग टू फॉल इन द फ्यूचर. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मींस एन इंक्रीज इन न्यू ऑर्डर्स कि अगर आज को आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि आपको कोई नए ऑर्डर मिले हैं तो डेट मीन्स न्यू ऑर्डर्स मिले हैं तो डेट मीन्स आपके फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ सकता है. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स मींस कि कंज्यूमर जो है
स्पेंड ज्यादा करने वाला है, बूस्टिंग मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बिल्डिंग परमिट्स एंड इंक्रीजिंग बिल्डिंग परमिट्स इंडिकेट फ्यूचर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। की आज आपको कोई परमिट्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो डेट मीन्स दीज आर इंडिकेटर कि कल को कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो डेट इज सिंपल लीडिंग मीन्स कि दे आर indicating in advance before actual things happen. Okay. So next is coincident indicators. So coincident indicators means ki which are coincidentally happening with the uh, economic activity. So which are simultaneously occurring विथ चेंजेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो एक्टिविटी चेंज हो रही है उसके साथ साथ जो इंडिकेटर्स आपके चेंज हो रहे हैं दीज आर दी कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स. So they are providing basically the current state of the economy. For example, GDP measure the total value of goods and services produced in economy reflecting the current economic activity. So coincident are कि जो current आपकी economic को indicate कर रहे हैं कि what is the current stage of an economy. So first is GDP कि आपकी GDP क्या है, means कि आपकी जो भी goods and services आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वैल्यू क्या है. एम्प्लॉयमेंट लेवल कि कितने नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड एट अ इन द करंट स्टेज कि करेंटली कितने पीपल एम्प्लॉयड हैं तो डेट इंडिकेट्स द एम्प्लॉयमेंट लेवल. रिटेल सेल मींस रिफ्लेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड करंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की करेंटली क्या डिमांड है किसी गुड की या सर्विसेज की. Industrial production means कि measure the output of factories, mines and utilities, indicating the current level of industrial activity की आपकी industrial activity के लिए आपका indicator है कि कितना आउटपुट हो सकता है फैक्ट्रीज का, माइंस का, यूटिलिटीज का, तो डेट रिप्रेजेंट दी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. ओके. So next indicator is lagging indicator. Lagging means कि that is lagging behind something. कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी हो गई उसके बाद जो इंडिकेटर्स चेंज होते हैं तो डेट आर कॉल्ड द लेगिंग इंडिकेटर्स. कि change after the economy has already begun to follow a particular trend which happen after an change in economy. For example, unemployment rate. So changes in unemployment rate lag behind an economic activity since employment decisions are made after economic conditions change. For example, new factories are set up, so something is already occur. New factories has set up. That means in future you need more employ. You need more employees. So that means the unemployment rate will decrease when new factories were increase. Consumer price index means changes in the price level of a basket of a consumer good and services reflecting inflation that follows इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो अगर इन्फ्लेशन होता है डिट मीन्स कि अगर कल को प्राइस बढ़ते हैं तो प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी चेंज हो सकता है. मीन्स कि कंज्यूमर जो गुड्स और सर्विसेज प्रेफर कर रहा है उसमें चेंज आ सकता है. So outstanding loan means changes in the amount of loan outstanding can indicate past borrowing and spending behavior. Business profits profit level reflect past economic condition and business performance. So अगर आपकी परफॉर्मेंस बिजनेस की पूरे साल अच्छी रही है तो डेट मीन्स ईयर एंड पे आपका प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा. तो दीज आर सर्टेन इंडिकेटर्स विच आर लैग्स बिहाइंड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कि जो एक्टिविटी होने के बाद चेंज हो रहे हैं. ओके, एनी डाउट?
एनी डाउट या चलो आगे? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके। ओके, वैसे ये completely out of syllabus है, but if you want I can read it for you नहीं नहीं, अगर because इस आउट ऑफ सिलेबस है कोई पॉइंट नहीं है ना फिर हम्म, हाँ पढ़ के। क्योंकि एक मिनट, ये टॉपिक छूट गया, सॉरी। क्योंकि इकोनॉमी की थ्योरी रिलेटेड तो वो तब पूछते बिकॉज कुछ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता। आपकी ऑडिट है, ऑडिट में इकोनॉमिक पूर ओवरऑल ही आपकी नहीं आने वाली इतनी, तो आपकी यहाँ से कहाँ ही आएगी टॉपिक। तो फिर ठीक है, रहने दो, वो हम स्किप कर लेते हैं। एग्जाम के टाइम अगर ऐसा हुआ तो मैं एक बार पढ़ लूंगी खुद से। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिकली ग्रोथ करना, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना चेंज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, टिपिकली मेजर एज अ परसेंटेज इंक्रीज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। सो हम इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली किसकी टर्म्स में मेजर करते हैं? जीडीपी की फॉर्म में। आपका प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का कितना बढ़ रहा है, हम किससे डिटरमिन करते हैं कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज की क्या वैल्यू है। इट इज अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आपकी इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे कैसे हो सकती है? कैपिटल एक्यूमुलेशन, कि जितना इन्वेस्टमेंट होगा फिजिकल कैपिटल में, तो इट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक आउटपुट, कि जितना अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतनी अच्छी आपको आउटपुट मिलेगा। तो डेट मीन्स आपकी जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू है इट विल इंक्रीज इन द मार्केट। लेबर फोर्स ग्रोथ, की अगर नंबर ऑफ पीपल जो है किसी कंट्री में, दे विल हायर मोर पीपल, और इम्प्रूवमेंट इन देयर स्किल एंड एजुकेशन बूस्ट, देन इट विल लीड टू अ बेटर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, तो डेट मीन्स आपकी जीडीपी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, मीन्स देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ इन दैट कंट्री। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मीन्स आपकी टेक्नोलॉजीज अगर एडवांस आती हैं, सो यू नो कि अगर पहले ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न मेथड्स हैं कितने डिफरेंट हैं और उनकी वजह से कितनी कंट्री की ग्रोथ अफेक्ट करती है। सो अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, मीन्स कम टाइम में आप ज्यादा वर्क कर पा रहे हैं, और सेकेंड थिंग, और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, कम टाइम में ज्यादा वर्क हो रहा है, कम मटेरियल यूज हो रहे हैं, तो डेट मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आपके नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक आउटपुट। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर मींस अगर आपकी जैसे ये लॉज एंड रेगुलेशन, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, प्रॉपर्टी राइट्स, इफेक्टिव गवर्नेंस फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ आल्सो, so it will also lead to the economic growth. So I think this is all basic कि आपकी कंपनी की ग्रोथ, वो सॉरी आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कैसे बढ़ सकती है, कि अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, आपके ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा प्रोडक्शन के टुवर्ड्स, इट मीन्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जीडीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी लेबर ज्यादा स्किल्ड है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, मींस अगर एवरीथिंग आपको गुड मिल रही है तो डेट मीन्स देयर विल बी अ गुड प्रोडक्शन, एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड विल लीड टू द इंक्रीज इन द जीडीपी। Measurement, we have real GDP. Real GDP, the most common measure of economic growth. Real GDP adjusts for inflation and reflects the value of goods and services produced in constant prices.
There is another term, GDP per capita. It measures the economic output per person, providing insight into individual prosperity and living standards. So GDP per capita means कि इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन कितना है, मीन्स कि एक इंडिविजुअल कितना अफोर्ड कर सकता है, इट्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड इट्स प्रॉस्पेरिटी की। सपोज कि किसी की हाई जीडीपी पर कैपिटा है, दैट मीन्स कि ही कैन अफोर्ड more products and maybe it also indicate its living standard also. Okay, someone living standard is too high, it means he can buy expensive thing. Implications of economic growth. So what are these various implications of the economic growth? Higher living standards, कि अगर लोगों का स्टैंडर्ड हाई होगा, लिविंग स्टैंडर्ड, इट मीन्स their income level increases, improve living condition and increase access to the good and services. कि अगर लोगों की इनकम ज्यादा होगी तो वो स्पेंड भी तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे. Employment opportunities. Growth creates more job and reduces unemployment rate. So अगर ज्यादा से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी लोगों को तो their unemployment rate will got decrease. Fiscal health means कि like financial health की increase economic activity generate higher tax revenues, enabling government to invest in public services and infrastructure. कि अगर हम टैक्सेस ज्यादा होते हैं, टैक्सेस से ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो व्हाट इज गवर्नमेंट एक्चुअली डज विद दैट टैक्स रेवेन्यू, ही स्पेंड विद इन दी जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, रोड्स बनानी है, रेलवेज बनानी है, प्लांट्स सेटअप करने हैं, हॉस्पिटल्स में देना है, पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. सो दे विल स्पेंड मोर इन दिस काइंड ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो अगर आप देखते हो ना कि किसी स्टेट में अगर किसी स्टेट में मतलब अच्छा ना गवर्नमेंट अर्न कर पा रही है, तो ही इट स्पेंड मोर इन दैट स्टेट की उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि business expansion. Growth foster a favorable environment for business investment and expansion. So अगर growth होगी तो it will be a positive sign कि business investment expansion ज्यादा होगी, because ज्यादा growth हो रही है किसी product की, तो that means you you have to produce more, and in order to produce more you need more investment, more space, you need to expand your factories. So all these circumstances affecting business cycle. So business cycle को क्या क्या circumstances हमारे affect कर सकते हैं. अच्छा ये तो okay, ये आपकी theories थी explaining the business cycle. आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर रीडिंग कर सकते हो इसमें. ठीक है, वो मैं एग्जाम से पहले एक बार रीड कर लूंगी वो. हाँ, तो ये आपकी बेसिकली कुछ थ्योरीज हैं बिजनेस साइकिल से रिलेटेड, कि कुछ अलग क्लासिकल थ्योरी आई आपकी, केनेसियन थ्योरी, मोनेटेरिस्ट थ्योरी, ऑस्ट्रियन थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरी आपकी बिजनेस साइकिल व्हाट इज एक्चुअली इट इज एक्सप्लेन्ड बाय all these. So next is circumstances affecting the business cycle. तो आपकी business cycle को क्या क्या circumstances affect कर सकते हैं. तो real business cycle model is given. It is based on premise that economic fluctuation result from real shocks such as change in technology, productivity. So आपके business को क्या क्या चीजें affect कर सकती हैं, कि आपकी कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया,
कि फॉर एग्जांपल न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई और जो प्रोडक्ट आपके पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे दे विल ऑल बिकम ऑब्सोलीट, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी इट मीन्स कि हायर एफिशिएंसी, पीपल विल बाय दैट मोर, और जो ओल्ड टेक्नोलॉजी की गुड्स की डिमांड सडनली गॉट डिक्रीज। सो आरबीसी मॉडल के अकॉर्डिंग कि बेसिकली आपकी चेंज इन टेक्नोलॉजी या प्रोडक्टिविटी can affect a business cycle. Rational expectation means economic agent make decision based on all available information and future expectation. Technological shock key variation in technological innovation lead to change in productivity affecting output and employment. कि अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आती है तो इट विल लीड टू चेंज इन प्रोडक्टिविटी, जिससे आउटपुट भी अफेक्ट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी। फॉर एग्जांपल आज एआई के केस में, बिकॉज एआई की हेल्प से बहुत सारी जो मैनुअल वर्क था इट गॉट रिड्यूस, तो इट मीन्स कि जो जहां पर आपके 100 पीपल एंगेज्ड रहते थे आज 10 भी लगाओगे तो आपका काम चल जाएगा। Intertemporal substitution, individual adjust their labor supply and consumption based on change in productivity and real wages. So based on productivity and real wages, labor supply और consumption का change होना, कि किसी टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो डेट मीन ज्यादा लेबर चाहिए तो यू विल हायर मोर, और कहीं पर नहीं तो उस केस में है ना लाइक कम लेबर से भी काम चल रहा है। So this is the real base business cycle model that indicates some factor that can affect the business cycle. Next, political business cycle model. It indicates about the political factor कि जो business को affect कर सकते हैं. For example, pre-election stimulus और post-election contraction. So pre-election stimulus means कि जो आपके like कभी कंट्री में इलेक्शंस होने वाले हैं तो उससे पहले के फैक्टर्स आपके जो बेसिकली अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन में इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कट टैक्सेस टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बिफोर एन इलेक्शन। सो जनरली गवर्नमेंट क्या करती है कि इलेक्शन आने से पहले अपनी एक गुड इमेज दिखाने के लिए समटाइम दे कैन कट ऑफ द टैक्सेस और समटाइम्स दे स्टार्ट शोइंग गुड ग्रोथ इन दैट कंट्री कि मतलब अपना विकास दिखाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर देती है कि नए फैक्ट्रीज, नए कोई यूनिवर्सिटी बना दी उस किसी पर्टिकुलर एरिया में, कि ये शो करने के लिए कि लाइक दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क in their country. So these can also affect a business cycle. Post-election contraction means कि after the election the government may implement austerity measures to control inflation and reduce deficit leading to economic contraction. So what can happen? एक गवर्नमेंट में implement certain kind of measures कि inflation और जो भी deficiencies हैं कुछ चीजों की उन सबको overcome करने के लिए they can implement the austerity also. Means they can decrease their budgets and all. They can increase sometimes taxes also. So in the US, it is often observed that fiscal stimulus measures are more common in election year, followed by a tighter fiscal policies post-election. So it can happen in all countries. Election आने से पहले they started to do some work कि ताकि public को अपनी spot में ला सके, कि कुछ नई
जो भी योजनाएं बना देते हैं कि देखो हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है, और मे बी सम यूनिवर्सिटी की किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी कि देखो हमने तो बहुत मतलब दे आर डूइंग, दे आर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर doing work towards reducing unemployment and all. Insufficient aggregate demand models suggest this Keynesian-based model attributes business cycle to fluctuation in aggregate demand. So demand-driven recession means recession occur when there is insufficient aggregate demand to maintain full employment. And role of government intervention through fiscal and monetary policies is necessary to manage demand and stabilize the economy. So basically it suggests कि demand driven recessions भी हो सकते हैं, means कि आपकी there is insufficient aggregate demand to maintain the full employment, कि demand ही नहीं है तो प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, तो डेट मीन्स एम्प्लॉयड करके क्या करेंगे लोगों को. रोल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि गवर्नमेंट की अगर मान लो कि पॉलिसीज चेंज होती हैं तो दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस. Okay, so I actually teach you all this. Next is accelerator model. एक मिनट, आपने क्या बोला? मैं समझी नहीं। हम्म मतलब मैं आपको ये बोल रही थी कि जैसे ये हाँ काइनेसियन थ्योरी ये इनमें आ ही गई है. हाँ, वो मुझे लगा ही आप मतलब वर्ड्स अंदर देखे मैंने। हम्म ओके ठीक है, हो गया, समझ तो लिया। ठीक है. ओके, ये लास्ट फैक्टर है एक्सेलरेटर model. So it will suggest that investment level are highly responsive to changes in the economic growth. So it is obvious कि अगर आपकी economic change होती है तो it can also affect the investment level. So small changes in demand can lead to larger change in investment, amplifying economic fluctuations. For example, कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो मीन्स आपका बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस हम मान के चलते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस में उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो मीन्स कि उनको अपनी फैक्ट्रीज एक्सपेंड करनी पड़ेगी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए. को भी फैक्ट्रीज एक्सपेंड करने के लिए दे नीड मोर इन्वेस्टमेंट. सो दिस मॉडल सजेस्ट कि आपकी जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट इज कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट. फर्म एडजस्ट देयर कैपिटल स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिमांड. सो रैपिड चेंज इन डिमांड इज ऑल्सो लीड टू सिग्निफिकेंट स्विंग्स इन द इन्वेस्टमेंट. की सिमिलरली कि जैसे इन्वेस्टमेंट आपकी चेंज होती है, चेंज होगी तो कैपिटल स्टॉक पे भी तो अफेक्ट पड़ेगा ना. हाँ पड़ेगा। For example, in an automotive industry, if consumer demand for car increases, manufacturers may significantly boost investment in a new factories and equipment. कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सिमिलरली यहाँ कार का एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कार की डिमांड बढ़ती है तो दे नीड मोर स्पेस ना कि प्रोड्यूस करने हाँ के लिए. में सिग्निफिकेंटली बूस्ट इन्वेस्टमेंट की अब किसी को रॉ मटेरियल खरीदने हैं, किसी को फैक्ट्री खरीदनी है क्योंकि ये एक्सपेंशन हो रहा है उनके बिजनेस का. सो उस केस में उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से या आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज होने से आपकी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी. कन्वर्सली अ ड्रॉप इन डिमांड, कि फॉर एग्जांपल कि अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डेट मीन्स कि जो उनकी एक्स्ट्रा फैक्ट्रीज हैं दे समटाइम्स shut off their extra factories or dispose of their like some dispose of their business line. So it will lead to a drop in demand, can also lead to a sharp cutback in the investment, contributing to the economic contraction. देन कि जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी फैक्ट्रीज में, मशीनरीज में,
So they can also reduce debt कि अगर उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो रही है तो. Yes, understood. Okay. So I think इकोनॉमिक पार्ट आपका यहीं तक था. Okay. नहीं, थोड़ा सा है अभी. तो क्या हम कल कंटिन्यू करें? आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, बस ये क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ फिर. इफ यू आर ओके. हाँ ठीक है, 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी का चलो मैं कर लूंगी. ठीक है. Which of the following factor is not a part of three C's that affect supply and demand? So supply and demand को कौन कौन से factors आपके affect कर सकते हैं, तो आपको इसमें से which does not affect आपको वो बताना है. क्लाइमेट कंडीशंस, Yes, climatic conditions. Okay. Next, the law of demand state that the price of a product is related to the quantity demanded of the product. How? आपकी डायरेक्टली प्राइस और डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड डायरेक्टली है. कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा. हाँ, सॉरी, उल्टा देखो. प्राइस बढ़ेगा किसी गुड का तो डिमांड बढ़ेगी. कम होगी. नेगेटिवली अफेक्ट मींस इनवर्सली अफेक्ट करेगा ना, कि अगर आपकी अच्छा. प्राइस किसी प्रोडक्ट की बढ़ती है तो पीपल विल बाय इट लेस. ओके, तो मतलब नेगेटिवली रिलेटेड टू द क्वांटिटी डिमांडेड. यस. Next is demand is considered elastic if a 1% change in prices costs more than a dash change in quantity demanded. So elastic कब होगी आपकी डिमांड की, अगर प्राइस की चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज हो रही है. 1% से ज्यादा. यस, मोर देन अ 1%. आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो रही है एज कंपेयर टू द प्राइस चेंज. Which method is used when numerical and dollar figure for different point on demand curve are given? जब आपकी डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में आप बेसिकली निकालते हो इलास्टिसिटी. मिड पॉइंट मेथड. यस, मिड पॉइंट मेथड आपका तब यूज होता है कि जब आपको टू पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो इलास्टिसिटी. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not the characteristics of perfectly competitive market? परफेक्ट इंफॉर्मेशन. Then तो हाई बैरियर्स टू एंट्री. यस, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपके बहुत सारे इंडिपेंडेंट बायर और सेलर हो सकते हैं. प्रोडक्ट में भी स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन परफेक्टली अवेलेबल रहती है, तो यहाँ पर आपकी जो हाई बैरियर टू एंट्री नहीं होता, बल्कि एनीवन कैन इजीली एंटर और एग्जिट द मार्केट. ओके. यस. ओके, सो आगे करें. कल करते हैं, आज के लिए इतना बस है. ठीक है, एक्चुअली मैं आज ऑफिस से बहुत थक गई हूँ, तो इसलिए अच्छा अच्छा. ज्यादा फिर जाएगा नहीं, समझ नहीं पाऊंगी, इसलिए उससे अच्छा लेक्चर ठीक है, एंड करके कल फ्रेशली स्टार्ट करें. हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. ओके, बाय. बाय.